second. Should I share this screen right now? No, wait, sir. Yes. So, good afternoon, good evening, friends. Welcome to our platform, Homeopathic Journal India Foundation. Me, Dr. Nirupama Agarwal, is today's coordinator, and our esteemed speaker is Dr. R.N. Wahi. And our today's topic is very important topic. It's privileges and responsibilities of homeopathic physician. And let me tell you something about our speaker too. So, Dr. R.N. Wahi is Chairman Organizing Committee of South Delhi Homeopathic Association. He is CEO of Homeopathic Pharmaceutical Association of India, Director International Homeopathic Foundation, and he is ex-member of Ayush too. And he has presented a lot of his papers on various prestigious platforms. So, welcome, sir. Light us with such an important topic. No one usually touches this topic. So help us understand what are our responsibilities. Welcome, sir. So thank you, Dr. Nirupama. I'm trying to share my screen, which is not with. You're not able to share? I mean, it's showing me that you select a window or an application that you want to share. So I have selected this window. You're able to see the green icon below share screen? Yes, yes. There is it. I have mentioned share screen. And now you go from there to your file. It's not responding. Okay, just a minute. Oh, share here also. Now I think it is visible. Yes, yes, sir. Yes. So as Dr. Nirupama said, the topic is, of course, I said important. Very important. And it is, I would like to say that although it's a sorry state, but the thing is that it is a neglected subject. Yes. Very important and yet neglected subject. So I would like to start this slideshow from the beginning. Right. So due to some technical reasons, I had to shift the title of my presentation slightly. So instead of privileges, I use the word rights of responsibility, rights and responsibilities. So again, why this topic is and why its importance. I think, all of us, when we go back to our classes, initial classes, because classes are everywhere, even now. So, but when we go back to the initial period, the subject, it used to be quite dull and boring subject. And our indifference itself, that is, it reaches to a level that during professional practice, most of us ignore it. Unless we are attached to a hospital where it's a daily requirement to keep various records. Now, my own experience, our teacher, he was DMS from Calcutta. And when he was teaching out this subject, he used to show us there is one book by 10 teachers. I'm talking of as back as 1964, 65. And again, when you go through the books, you feel like a boring subject. But once it so happened that while there was a bookshop only of medical books in Daraganj, I went to purchase, that civil system of clinical medicine. I still appreciate that particular book because that is less dependent on the lab reports. And then I came across the book by our very famous Dr. Modi. Suddenly I saw that book, and when I was going through the article, the pages, my went across a topic. There's a Bhowal Sannyasi case. Now somehow I had heard about this case with my elder brothers. It was a very long in the medical
history. It was a very long case. Of course, details, of course, are given in the book. So that's a separate issue. But that was something which brought me and me some interest in that, because there were a number of cases which were given, and that made the subject more interesting. And now, to update the profession about National Commission of Homeopathy, they have introduced the Code of Conduct, Ethics for all the practitioners of homeopathy. These regulations, they were notified on 13th of December, 2022. Once we are dealing with any subject, we must go through the historical background also. Actually, the origin of recognition of homeopathic system of medicine, it dates back to the year 1937, when Dr. K.G. Saxena, when he passed out of BMBS, from Calcutta Homeopathic Medical College, and they had got very good teachers. They were all of them. They were leading practitioners, and maximum of them, they were all converts. But after clearing the BMBS, when coming to the ground realities, there was a lot of impediments. There was no recognition. And when we go to the teachers, which were there, they were all very famous teachers. Dr. J.N. Majumdar, I still remember, because he had set our paper on surgery. And I still remember a question: define sepsis, asepsis and antisepsis. Justify these under section 4 of the organon. Dr. A.N. Majumdar, Dr. N.N. Chaudhary, all leading personalities. Dr. Mahendra Lal Sarkar, Dr. Mahendra Kumar, then Dr. Divan Jaychand, Dr. Dayashankar, V.D. Kashyap, they were from Delhi. From Agra, we had Dr. Jain Agra. I had heard his name, from my maternal grandfather. Now, why this background was important is, this was the time, when there's a transition towards recognition of homeopathy. And again, for that, there is a little background, because after the efforts of Dr. K.G. Saxena, the Central Legislative Assembly at that time, they finally appointed a homeopathic inquiry committee that released its report in 1949. That was the seedling, I would put it, where from the recognition started. Gradually, then there were different states in India, they had all different curriculums. There were registration councils, some had not only certificate courses, then degree, diploma courses, degree courses, and so on and so forth. So there was no uniformity in the different curriculums from the council at all India level. So then, keeping with the recommendations of the Homeopathic Inquiry Committee, it was decided that there should be an all India level body. So initially, government did say for ISM and homeopathy. There was a strong opposition from ISM as well as from homeopathic side that we should have our separate councils. So that gave birth to the CCI, Central Council of Homeopathy. This was inaugurated by Dr. Karan Singh in the year 1975. So now, leaving aside all the background, we come to this straight away to our topic. And this was latest is after the National Commission of Homeopathy Act. It was finally adopted in 2020. And under that, there were different boards, 4. So regulations involving the code to be followed by registered homeopathic firms, they have been framed in exercise of the powers given under the National Act. So these are the references I have given. So it is for anybody, it's for clear for everybody to go to the website and then find out the details. Health being a subject, they are presently, they are all in the process of implementation, and implementation is done by the concerned agency in the states. And there are different divisions under the chapter, which is normally the system under the law.
So these regulations, they have been divided in 7 chapters and 4 appendices. Chapter 1, it deals with the preliminary, which explains the definitions and some which are used in the regulations. Then chapter 2 deals with the general principles. Then third chapter that prescribes the duties of homeopathic practitioners. And the next is the duties of the towards the profession, to the patients, number then to the patient, to the profession. And next we come to chapter 6, which gives us the duties, what are our duties, the responsibility as we call it. The next chapter deals with the misconduct. And then the appendices, there are 4: declaration and oath, Panamanian oath, list of certificates which can be issued by homeopathic doctors for the purpose of various acts or administrative requirements, and medical certificates and other certificates also. One can issue the death certificate or any other sort of medical head and health the fitness certificates, etc. They all can be given. So chapter 1 deals with the preliminaries, which are most of the, they are very common under the, which can easily be understood. But then there is a new definition which has been mentioned as Ayushman Bharat Digital Mission. Now this means, as the case may be, is a mission which seeks to create national digital health ecosystem. Why? Because the government's pressure, the effort is to create all the chapters or the details, on a national level that supports universal health coverage in an efficient, accessible, inclusive, affordable, timely, and safe manner that provides a wide range of data, information, and infrastructure services, duly leveraging open, interoperable, standards-based digital systems, and ensures the security, confidentiality, and privacy of health-related personal information. Now, why this is? This is to keep the future trend in mind when we are able to have the complete data. Please bear with me, I'm having some throat problem. So coming to the second chapter, which deals with the general principles. Now, first and foremost is the character. The primary objective is to render service to the humanity with full respect for dignity of human being, and financial reward is a secondary consideration. That means the first and foremost duty is rendering the services on a humanitarian ground. And they have to, Dr. Nirupa, I'm facing some problem, My slide, when I'm moving through the general slideshow, our pictures are creating a problem in hurdle. So should I go back to the... See, there will be icon above where 1, 2, 3 lines will be there. Yes. So click on line 1. So all the windows will get closed and only slide will be there. Okay. Now I think it's clear. Clear, no? And why that? So that choosing the medical profession, it assumes obligation to practice according to its idea. That means according to its fundamental principles. Choosing, and then person has to be duly qualified and registered with appropriate authorities, follow the regulations, purity in character, diligent in caring for the sick, modest, patient, and prompt to do duty without anxiety, pious, and in all actions of his or her life. अब देखिए ये चीज जनरल जो आती है, there is very important heading which is given is the ethics. Ethics का अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब आएगा मर्यादा.
और मर्यादा शब्द के लिए हम लोग जानते हैं श्री राम। वहीं से मर्यादा शब्द जो है, मर्यादा शब्द वहीं से आया है, और उसी को बाद में इंग्लिश में एथिक्स में डाला गया। Then standards of character and morals. These have to be of the highest level, and commitment to duty. As a practitioner, one has to be temperate in all matters. The practice of medicine requires unremitting exercise of a clear and vigorous mind. बहुत responsibilities रहती हैं, which of course diligently we have to follow. And we have to uphold the dignity and honors of his or her profession with prime objective of rendering services to humanity, and rewards and financial gains are the secondary issues. काम करते रहिए, फाइनेंशियल रिवार्ड मिलता है. Continuing with this, prescription and medical certificate. Now, anybody, by any patient or any authorities which they require, you are supposed to give the prescription within 72 hours as requested or required by such person. Likewise, and also issue the medical certificate, which, if required or if when desired. And the format, of course, now it is given in Appendix 3, so I'm not mentioning it in detail. The important thing is that you have to keep a copy of this certificate for at least 3 years. Then one should display the registration number on your clinic. Well, this was something which it came as a, I mean, of course, my registration certificate is there, no doubt. But then we have to mention on every prescription as per medical certificate and diploma degree, membership, and you can use the word suffix as doctor because you hold the recognized qualifications. So frankly speaking, I mean, I don't have any hesitation to say my case. I have never bothered to write the registration certificate on my prescription pad or other such documents, which of course, I will see to it that, I implement it now. Then our responsibility is we are supposed to merit the confidence of the patient while rendering service and devotion. Confidentiality, it is very, very important because we are supposed to have the privacy. We are not supposed to share the details of the patient with anybody, unless, yes, in case it is required in a court of law, then of course, that is, we are supposed to give it. Otherwise, it is supposed to be kept secret, even at times, even the closest family members. Now, advertising. That is unethical practice. This unethical practice is soliciting the patients directly or indirectly through newspapers, circulars, distribution, placards, and bills. Also, you are not supposed to lend your name or signatures by any other person to publicize yourself through lay channels which shall be of such a character as to invite attention about yourself or your professional position or skill, resulting in your self-aggrandizement. Here, I have found that you are not supposed to, in fact, lend your signature. I was surprised, and I have recollected that, of course, it's many years back now. I could find a number of lab reports, from different lab reports. I think, if I remember, there were 8 different labs wherein as signatures, I found the name of one pathologist. I don't know, I mean, how one could be so efficient that सुबह से शाम तक कितनी labs attend करेगा वो, और बाकी अपने आप काम देख पाएगा. But anyhow, so that clearly shows, at least I can say, that it was an unethical practice. But what we have permitted, what we can share in the media, is starting of practice, change of address. Just a minute, I have to go back to this earlier slide.
starting of practice, change of address, temporary absence from duty, or when we resume the practice, succeeding to another's practice, or registration on any Ayushman Bharat digital mode, and जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे हम लोग कर सकते हैं. लाइकवाइज अपना नाम प्राइसिस्ट है, पब्लिसिटी मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के हैं या ट्रेडर्स हैं, इन सब में वी आर although we may be connected in any capacity, but we cannot publish cases or operations or letters of thanks from the patients in non-professional newspapers or journal. I will tell you, I am also a partner of a trading, which of course, we have made very clearly, the different. Supposing, when the sales counter, somebody comes and say, "Sahab, ye material kis kaam aati hai?" Then there, they will not say anything. We do not know. We consult your physician. आपके यहाँ भी कोई physician है, आ जाते अंदर. I could just check it. कि क्या होता है, किस लिए आता है, and frankly speaking, I refused it. I said, no, you have to consult your physician who has prescribed this medicine, not to me. So these are the things, we have to maintain. Then again, letter of thanks koi de, patient na de, that is all separate thing, but we cannot publish in a non-professional journal. But you can publish your name in connection with a prospectus or directory or a technical expert's report. Similarly, we cannot follow, we should not follow or promote objectionable claims on various e-platforms, nor use the prescription according to such claims which may bring bad reputation to the system. Unfortunately, I'm sorry to add here that I have found number of our younger generation, especially on the social media, let them promote anything, let them write anything about the role of homeopathy or what are the limitations, what are the advantages. All these they should. But sad part is that number of cases I have found that they are also making case you can take this medicine or that medicine for this thing. So that is something which is unethical. It is not to be done that, because that brings bad reputation. Because why say? Because otherwise that आपने सोशल मीडिया पे देखा, इसने क्लेम किसने कि ये इस मेडिसिन दिए हमने, बट देन उसका एब्यूज शुरू हो जाता है एंड फाइनली ब्रिंग्स ए बैड नेम टू द सिस्टम. अपना नाम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब कोई पब्लिक हेल्थ का टॉपिक है, हाइजीन वगैरह का है, या अगर आपने कोविड वी हैव सीन, तो वहाँ पर अगर कोई हेल्थ रिलेटेड पब्लिक हाइजीन से रिलेटेड है कुछ भी चीज़, तो वहाँ पर हम उसको कर सकते हैं, या डिटेल हमें जो भी दी तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम दे सकते हैं, नॉट अदरवाइज. देन प्रोफेशनल सर्विस. सर ये जो टॉपिक अभी आपके लिए उसको रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कैन आई टेक नाउ और एट द एंड? हाँ, सो नहीं पर्सन तो हाँ, नहीं जरा रिपीट करिए क्वेश्चन. हाँ, उसको हाँ, क्वेश्चन को रिपीट करिए. ये जो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे लोग दिखाते हैं, हाँ इसको लेकर के कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, फिर लोग खुलेआम ही दिखा रहे हैं ना? हाँ, दिखा रहे हैं खुलेआम. नहीं, आगे ये व्हाट आर द मिसकंडक्ट के देखिए, ये मिसकंडक्ट के अंदर आ सकता है. आगे जो टॉपिक आएगा ना, मिसकंडक्ट, उसके अंदर ये चीज आ सकती है. एंड उसके लिए अगेंस्ट एनी वन कैन मेक कंप्लेंट टू द अथॉरिटीज. अपने नेशनल कमीशन में वन कैन लॉन्च ए कंप्लेंट. बेस्ट थिंग इज के अगर आप उनको जानते हैं तो उनको कहिए कि कृपया करके ऐसा ना करिए, अदरवाइज यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड. इतने कहते तो वही डर जाएंगे. प्रोफेशनल सर्विस से रिलेटेड आप चार्जेस पेशेंट को बता सकते हैं व्हेन इट इज बीइंग रिमेंबर्ड. बाकी आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप जो है चार्जेस डिस्प्ले कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम एक चीज बहुत जरूरी है कि देखिए, हर किस्म का
पेशेंट होता है, देर आर पेशेंट्स हु कैन अफोर्ड मच मोर, देर आर पेशेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड। तो जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, कृपा करके उसको पावर्टी फैक्टर को और या अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, तो उस केस में हमको वी हैव टू बी क्वाइट लिबरल। कोई जरूरी नहीं है, देखिए जितना मुकद्दर में उतना तो मिलेगा, और जितना मुकद्दर में नहीं है वो अगर ले भी तो चला जाएगा। चला जाएगा। हाँ, तो इम्पोर्टेंट काम क्या है कि नहीं कि पेशेंट की इकोनॉमिक सिचुएशन को भी कंसिडरेशन में लेते हुए उसके साथ में जो भी चार्जेस हैं जो वैलिड हैं उसको ठीक समझते हैं, उसको पिंच नहीं करें। एटलीस्ट सर्विस शुड नॉट बी एनी डिबार्ड only on the basis of the financial consideration. Then आप शर्तिया इलाज ये कभी नहीं करेंगे। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होगी, नो क्योर नो पेमेंट, दिस इज नॉट परमिटेड। हेल्थ डिलीवरी सिस्टम जो है, बहुत सारे लॉ हैं, कुछ का मैंने रेफरेंस दिया है। ये इनके बारे में हम सबको मालूम होना जरूरी है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, अब इन रूल्स के अंदर डिफरेंट टाइमिंग्स पर अमेंडमेंट भी होती हैं, अभी आजकल भी प्रोसेस में है। फार्मेसी एक्ट, देन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंसेस एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट, देन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह सब उसके अंदर आते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, देन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट। ये देखिए 2010 का है, लेकिन अभी तक कई स्टेट्स ने इसको अपने यहाँ लागू नहीं किया है। उसमें चाहे कोई ट्रस्ट चला रही है, कोई हॉस्पिटल, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हॉस्पिटल खोले, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, या जैसे गुरुद्वारा है, लायंस क्लब वगैरह होते थे, ये अपने डिस्पेंसरी जो लोग चलाते हैं, ये सारी एस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर कवर हो जाती हैं। उसकी अलग रेगुलेशंस हैं, कितना स्पेस होना चाहिए, क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, अगर स्मॉल क्लिनिक है तो पॉली क्लिनिक है तो क्या होना चाहिए, और अगर थोड़ा इंडोर आईपीडी का है तो डिपेंडिंग ऑन दी कितने बेड्स का है उसके हिसाब से, वो सब रेगुलेशंस के अंदर सेपरेट दिए हुए। देन प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, जहाँ पर हम लोग सब जानते हैं कि सेक्स के डिटर्मिनेशन अल्ट्रासाउंड वगैरह के थ्रू जो कोशिश होती है वो इट इज ऑल प्रोहिबिटेड। या लाइकवाइज कोई से भी ऐसे एक्ट होंगे जो कि जनरल रेगुलेशंस से होते हैं, मेरे और कनेक्टेड जहाँ पर होते हैं, लोगों का जरूरत होती है, उन सब वो सब के बारे में हमको मालूम होना चाहिए, उससे हम लोग अलग नहीं हैं। अब आता है हमारे ड्यूटी क्या है पेशेंट्स की तरफ। ऑब्लिगेशन टू द सिक है कि इन केस ऑफ अर्जेंसी you for the sake of humanity and professional noble traditions, not only you should be ever ready to respond to the cause of the sick and the injured, but also be mindful of the high character of the mission and your responsibility towards discharge of duties. At the same time, you must be careful to the scope and limitations of your expertise. अगेन मतलब है कि कोई भी कॉल आती है, अर्जेंसी भी होती है, उसके लिए हमको फौरन तैयार रहना जरूरी होता है, और मिशन क्या है हमारा उसको भी देखना इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी क्या है, स्कोप एंड लिमिटेशंस क्या होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक केस रिलीज एज बुक बैक एज द ईयर 1986। आई वाज कॉल्ड फॉर to appear as a medical witness. केस सजा के एक यानी न्यूली मैरिड थी, उसका ससुराल वालों की से आता था, उसके केस में आई थिंक रेस्पिरेटरी एलर्जी का केस था। उस केस का ट्रीटमेंट मैंने किया। कुछ टाइम के बाद में लड़की की मदर इन लॉ
कहते हैं कि साहब ये जो है की बात है, चंडीगढ़ में इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता था, तो अब ये है कि चाहते हैं कि एक बार वहाँ पर जो है उनको भी दिखा दें कि आपने क्या क्या दवाइयाँ दी हैं, एंड कंसिडरिंग द जेन्युइनिटी ऑफ द केस, मैंने विदाउट सस्पेक्टिंग एनीथिंग कि उनका पीछे मकसद क्या है, मैंने दे दिया उसको। कुछ टाइम के बाद में मेरे पास में रोहतक का केस था, ये मेरे पास में कोर्ट का नोटिस आया टू अपीयर एज मेडिकल विटनेस। तो खैर जब आया था तो नेचुरल बात है कि सिंस सब्जेक्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेरे को वो मोदी साहब की चीज को देखते हुए मेरे को याद आ गया कि भी क्या 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 चीज हमको जो है देखने जानी चाहिए। तो आई टुक माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आई टुक माई पेशेंट्स रजिस्टर। तो जब वहां पर गया तो यानी जो लड़की के ससुराल रहते जिनके की तरफ से ट्रीटमेंट चलता, और आज भी फैमिली सारी की उनकी जो है काफी मेरे चार्ज में रहती। तो उस वक्त में जब उनके एडवोकेट के साथ बात हुई तो मैंने कहा, तो एडवोकेट के साथ बात हुई, मैंने कहा देखिए मेरा ड्यूटी जो है एज ए मेडिकल विटनेस, क्वेश्चन आप कुछ भी करें या क्रॉस एग्जामिनेशन में आप में एडवोकेट कुछ भी करें, बट मेरे को तो यह है कि आई हैव टू स्टिक टू ओनली टू माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए प्रैक्टिशनर, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द एडवोकेट। उनका सब बात नहीं, बात ठीक है करने के। अभी आप सुनो कि मेडिकल विटनेस जो है इट्स लाइक ए डबल स्वॉर्ड एज। मैं कहा बस ठीक है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे। अगेन आप रजिस्टर्ड हैं, आप क्या रिकॉर्ड रखते हैं पेशेंट का, ये इस पेशेंट का ट्रीटमेंट आपने किया है, मैंने कहा एवरीथिंग इज कंफर्म। उन्होंने एक चीज मेरे को, क्योंकि लेकर के मेरे को वही गए थे, आई वॉज इन कृष्णनगर दिल्ली एंड केस वॉज इन रोहतक। तो वहाँ उन्होंने एक बात और भी कही, कहने साहब एक चीज़ है कि अच्छा गाड़ी मेरी थी गई, तो मेरे को ये कहते हैं कि अच्छा आप एक बार जरूर कर दीजिए कि आप डॉक्टर वहाँ पे जज को ये जरूर करिए कि आई हैव कम एज ए विटनेस ऑन द demand by the court, but then even I should be given the justice, because coming to Rohtak all the way from Delhi and wasting my entire full day for this being a witness. So I deserve the charges for the transportation. I come by my own car, and of course my whole day is wasted. So court agreed to it, और उनको कहा कि साहब अभी इतना इनको और दीजिएगा पेमेंट। खैर मगर उस वक्त में क्या हुआ कि पर्सन से के हमारे एडवोकेट ने जो है ये पूछा कि साहब एक बार बताइए, ये लड़की तो बहुत छोटी है, पतली दुबली है बिल्कुल, कितनी फ्रेल सी दिखाई देती है, और लड़का जो है काफी लंबा चौड़ा हेल्दी है, तो आप ये बताइए कि क्या सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी पॉसिबल है इन केसेस के अंदर। तो मुझे एक बार एक सेमिनार में डॉक्टर MP आर्य का वर्ड मेरे को याद आ गया। तो व्हेन ही सेड कि सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल लाइज इन द ब्रेन नॉट इन द जेनिटेलिया, सेम वर्ड्स आई रिपीटेड, यानी कि सब कि इसमें जो है कोई सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी से इस प्रॉब्लम का, डिजीज का कोई रिलेशन नहीं है। एंड दैट वाज द उसमें फिर जो दूसरी पार्टी का एडवोकेट था जिसने कि क्रॉस एग्जामिन करना था, उसके लिए कोई पॉइंट रह ही नहीं गया था, एंड द केस went against my own clients, my own patients. So that was the thing. But then, when we have to respect our profession. Patient not to be neglected. You are free to choose the patient you will treat. However, you shall respond to any request for the assistance required in cases of emergencies. You can treat the patient giving regard to your limitations. अपनी limitations हो वहां तक कहिए जहां अपने स्कोप से बाहर होता है, बाकायदा आप और हेल्थ केयर फैसिलिटी को आप देखिए, क्योंकि इट इज ए पेशेंट अबव ऑल। इट इज नॉट कि हमने उसको यही दवा देनी है, होम्योपैथी की दवा देनी है, जहाँ इमरजेंसी होगी। अदर फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, पर्सनस लाइफ विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो वंस फिर जब आपने केस को अपने हाथ में ले रखा है तो निग्लेक्ट नहीं करेंगे आप, और केस से जब तक कि आप फैमिलीज के पेशेंट को
पेशेंट को या उनके रिलेटिव्स अगर को जब तक कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तब तक आप उस पेशेंट को ट्रीटमेंट अपनी तरफ से नहीं रोकेंगे। बट यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि कैन वी इवन रिफ्यूज, तो उसका आंसर ये है कि यस, ये 11 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन है नेशनल मेडिकल काउंसिल का, और इसके बारे में इट वाज ओनली लास्ट वीक व्हेन आई हैड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दिस पीपीटी, तब मैंने देखा था कि जहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी ने भी इसको किया कि नहीं, यू कैन रिफ्यूज। तो उसमें ये कंडीशन देखी आती है, नेशनल मेडिकल काउंसिल का 11 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन है, जहां पर उन्होंने पेशेंट केयर के सेक्शन है, उसके अंदर क्या लिखा है कि आरएमपी इज फ्री टू चूज whom he will serve except in cases of life emergency, life threatening emergency, or in case of abusive, unruly and violent patients or relatives, the RMP can document and report the behavior and refuse to treat the patient. Such patient should be referred for further treatment elsewhere. Then, moreover, the doctors can also refuse to treat the patients if the agreed upon fees are not paid in lieu of treatment. This said provision, however, will not be applicable to government doctors or in case of emergencies. ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जहां कहां केसेस में आप मना कर सकते हैं। अब पेशेंट्स की तरफ हमारी क्या ड्यूटीज हैं? Act of negligence. We will not willfully commit any act of negligence that may deprive the patient of accessory medical care. सारा काम तो सिर्फ मेडिसिन इंटरनली देने से तो नहीं होगा ना, कि कई बार केसेस पे, और आपको बता देता हूँ, ड्यूरिंग द कोविड-19 केस फर्स्ट वेव के टाइम में आई नो ऑफ ए केस जो कि प्रॉब्लम अक्सर है, माइनर फ्लू या कोल्ड वगैरह की प्रॉब्लम होती रहती है, और पेशेंट मेरे पास में आया कि साहब मेरा ऐसा है, और कहने का डॉक्टर कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे तो होता रहता है, आप ट्रीटमेंट दीजिए। मैंने दिया मेडिसिन का, कहना और कोई ऐसी बात नहीं है। आई सेड फेयर है ना, मैंने मेडिसिन दिया, विद इन ए वीक पेशेंट वाज ऑल राइट, दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ी। देन अगेन आफ्टर अबाउट ए फोर्टनाइट और सो द पेशेंट केम विद हिज डॉटर एंड सन इन लॉ। उस केस में जब चेक किया मैंने, तो आई कुड फाइंड दैट ही इज अंडर द एक्यूट हार्ट अटैक। उसको चेक किया, मैंने कहा देखो ये केस जो है, ये ही नीड्स एडिशनल केयर, जो कि क्लिनिक के ऊपर मेरे पॉसिबल नहीं है। एंड व्हाट आई कैन डू इज कि आप इनको हॉस्पिटल लेकर के जाइए। तो उन्होंने कहा कि साहब आजकल तो कोविड का दिन है। मैंने कहा आप हाँ पंत हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं, सर नथिंग, वहाँ तो सिर्फ कोविड के केसेज ही ले रहे हैं। मैं रेफर टू मैनादर के भी, आप ठीक है स्कॉट्स में चले जाइए, तो वो तो हट गई है। बट देन दे टुक टू अनदर हॉस्पिटल विच इज मोर कन्वीनियंट टू देम। मेरे ये एक सुबह लगभग 11 बजे की बात है, मेरे पास में 1:30 बजे करीब फोन आता है कि सब जो डॉक्टर हैं वो आपसे बात करना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है दीजिए। मैंने कहा बात कराइए। तब तक उनका नहीं, वो भी राउंड पे चले गए, फिर बाद में बात बता देंगे। लेट ऑन इन्फॉर्मेशन मिली कि इनको 2 दिन पहले का अटैक हो चुका है। और खैर उस केस को मैंने ये कहा, वो मेरे को बार बार जिद करते कि नहीं साहब आप ही ट्रीटमेंट करो। मैंने कहा पॉसिबल नहीं है। और मैंने कहा अगर कुछ इनको हो जाता है तो देन आई विल बी चार्ज अंडर नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर मेरे को फंसना है। मैं दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू। फाइनली शाम को तकरीबन 4:45 बजे करीब में मेरे पास में उनके ब्रदर का फोन आया था कि साहब ये आया था आपके यहाँ। मैंने कहा सर ने, मैंने बता दिया उनको कैसे कैसे, फिर गए हॉस्पिटल में। एंड 5:30 द पेशेंट डाई। अब देखिए अगर मैं उस वक्त में वो अगर काम नहीं लेता और केस की डेथ हो जाती, तो मैं तो नेग्लिजेंस का अंडर ही जाता ना। तो दीज आर दी थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही आता है कि ड्यू डिलिजेंस एंड स्किल इन सर्विसेज। मैंने उस केस में जिसकी बात कर रहा हूँ मैंने उनको कार्बोवेजिकलिस 200 और क्रेटिगस 2 मेडिसिन दिए, जिनको कि मैंने कहा एवरी 5 मिनट्स इनको ऑल्टरनेट करके आप देते रहिए, ताकि हॉस्पिटल तक पे पहुंच जाएंगे आराम से। बट देन उसके बाद का तो मैंने ऑलरेडी गिवन यू दिस स्टोरी।
And so due diligence is important, and skill in services as would be expected from another homeopathic practitioner of similar qualifications and experience and attainments. अच्छा, अब आपसे कोई भी अब गलती हो भी जाती है तो इसका जजमेंट देखिए, जिस केस में उस केस में जब डेथ हो गई थी, उस केस में मेरा खुद अपने दिमाग में ये अपसेट रहा कि मेरे से कुछ और भूल चुक तो नहीं रह गई. बट इन वेरियस वेबिनार्स आई अटेंडेड, फाइनली इट वाज, आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर जसवंत पाटिल, who after listening all these details of the case, he said, no, Dr. Bhai, that was no negligence from your part. The death was of the patient was more because of the fear, because he was not prepared to go. उसके दिमाग में fear था कि मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा. That was when Dr. Jaswant Patil gave me that assurance. That relieved my burden. तो अब यहाँ पर क्या है कि again, any act of commission or omission by you shall not be judged by any non-homeopathic standards of professional service expected by you, but by those standards as are expected from a homeopath of his or her training, standing, and experience. Then you should use only those drugs prepared according to the homeopathic principles and according to homeopathic pharmacopoeial standards as approved by the licensing authorities. यहाँ पर आई एम सॉरी से कि आने के काफी आप लोग जो है बॉम्बे से और महाराष्ट्र से अटैच में, महाराष्ट्र में जो है, हालांकि देखिए क्रॉसपैथी जो है लीगली इट इज नॉट परमिटेड, बट येट आई थिंक एलोपैथिक प्रैक्टिस जो है इट इज बीइंग डन by a good percentage of homeopaths. That is a sorry state of affairs. अब आई डोंट नो कि कहाँ तक वो जस्टिफाइड है, कहाँ तक नहीं है, क्या चीज है, वो आप लोगों पे छोड़ते हैं. हाँ, आप इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स वगैरह हैं वो सारे के सारे आप लोग शेयर नहीं उनको इस्तेमाल करेंगे. लैब है वेरियस है, चाहे वो आपने इवन गोइंग अप टू पीटी स्कैन, पेट स्कैन करना हो, MRI है, CT स्कैन है, और लेबोरेटरी के जितने भी स्पेशल होते हैं इन्वेस्टिगेशन जो रिक्वायर्ड है, दैट यू आर ऑल यू कैन एंड यू शुड. पेशेंट की तरफ क्या ड्यूटीज है? जो लॉ एंड रेगुलेशंस हैं, एक तो होम्योपैथिक प्रैक्टिस से कंसर्निंग जो लॉज है उनको आप बाकायदा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ड्यूटीज आपकी कि उनको ओबे करेंगे. देन एट द सेम टाइम कई बार ऐसा होता है कि भी आपके पास से कोई और सकता है कि प्रोफेशनली कोई और आगे बात करनी शुरू कर दे कि आप उसके, और होम्योपैथ भी हो तो आप उसको ये मिसगाइड नहीं करेंगे. जहाँ पर उसकी गलती है उसमें आप उसको शील करने के लिए कोई लीगल लूपहोल नहीं गाइड करेंगे. प्लस इसके अलावा पब्लिक हेल्थ के इंटरेस्ट में आपको एनफोर्समेंट ऑफ सैनिटरी लॉज एंड रेगुलेशंस दैट यू आर टू डू, एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी जितने भी रेगुलेशंस हैं उन सब के बारे में पता होना और उसको अमल में लाना, ये इम्पोर्टेंट है. Behavior towards the patients, we have to be courteous, sympathetic, friendly, and helpful, and every patient shall be treated with attention and consideration. ये नहीं है कि बंदा कोई इसको आप देखिए कि यार ये तो पेमेंट भी देने वाला नहीं है प्रॉपरली, तो उसको आप अटेंड ना करें, ये ठीक नहीं है. यू हैव टू, चाहे वो कोई अरबपति हो, करोड़पति हो, या एक भिखारी भी हो, उसको भी आप मना नहीं करेंगे, और आप उसको उसी तरीके से अटेंशन देते हुए, कंसिडरेशन देते हुए तभी उसको बिहेवियर रखेंगे अपना उसकी तरफ. प्रोग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नीदर यू शैल एग्जेजरेट नॉर मिनिमाइज द ग्रेविटी ऑफ द पेशेंट्स कंडीशन एंड शैल इंश्योर दैट द पेशेंट, हिज और हर रिलेटिव्स or responsible friends have such knowledge of the patient's condition as will serve in the best interest of the patient and the family. देखिए,
ये भी होता है कि कई बार एक गरिमा में होते हैं कि मान लीजिए आप देख रहे हैं कि टर्मिनल इलनेस है, पेशेंट अगर सेंसिटिव टेम्परामेंट का है काफी, अगर आप ये अंदाजा लगता है कि भी ये सुनकर के ये तो जल्दी जो है इसकी डेथ हो सकती है, तो ऐसे केस में उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव को अलग से उनको बता दिया जाता है कि ये चीज है, ऐसी करेक्ट चीज बता देनी चाहिए। और अच्छा, फिर कई बार आजकल अनएथिकल प्रैक्टिस भी होती है कि जाके जो है फियर क्रिएट करो और आगे उसको पेशेंट का को कराते रहो, ज्यादा ट्रीटमेंट करो, वो भी गलत है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज ए practice in the medical industry. I'm using the word industry, I'm not using the clinics. These things are going on. So that's something which should not be done. पेशेंट के इंटरेस्ट में क्या है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, आपके हम उनसे पेशेंट कंडीशन का नाम सुन करके परेशान ना हो जाए और कभी उसी में तबीयत बिगड़ जाए। ये चीजें भी हो तो हमको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उसको बताना होता है। और जहाँ भी जैसे बताया ना सीरियस मैनिफेस्टेशन हो तो पेशेंट को टाइमली नोटिस दे दो या भी अटेंडेंट हो, जब जरूरत हो तो पेशेंट के बारे में एक को बता देना ही ठीक है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका एटीट्यूड क्या है प्रैक्टिशनर का, कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग द इंडिविजुअल और डोमेस्टिक लाइफ। बहुत सारे सेंसिटिव क्वेश्चन आप जानते हैं। एज एज होम्योपैथ तो मैं कई बार जिन लोगों को कभी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया होता तो उनको कई बार पहले ओरिएंटेशन देना पड़ता है। उनको पूछ लीजिए कभी कभी आपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराया है नहीं, अगर नहीं कराया है तो पहले से उनको कहना था भाई देखो हमारा सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन ईच इंडिविजुअल पर्सन। इसको कस्टमाइज ट्रीटमेंट आप बोल दीजिएगा। मगर बहुत सारे हमको बड़े सेंसिटिव क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, तो ये मत सोचिए कि हम ये सवाल क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए पूछते हैं कि आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को जज करने में हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चीज़ उनको बताना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। Sir, it's 9:50, huh? I'm just informing you the time. ओके ओके, आई विल हरी अप। Sir, it's very important topic. हाँ, then we have to uphold the honor of the profession at all times. Then it is also important that we should be regularly, we should affiliate ourselves with the medical societies and contribute time, energy, and means to better represent and promote the adults of the profession. Important क्या चीज़ है कि देखिए डेवलपमेंट्स हैं हर एक फील्ड के अंदर काफ़ी तेज़ी पे चलते हैं, तो हम लोग को अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अपने आप को बराबर किसी न किसी जो मेडिकल सोसाइटी के साथ में टच में रहना इंपॉर्टेंट है। अनएथिकल कंडक्ट अगर हम कोई देखते हैं तो ये फिर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। तो करप्ट अगर डिसऑनेस्ट पर्सन है तो उसके बारे में प्रोफेशन को पता होना चाहिए, बता दीजिए। अच्छा, अब बताए प्रोफेशन में क्या ड्यूटीज हैं। कभी आपको टेम्पररी एब्सेंस है तो आप सब्स्टिट्यूट अपनी जगह आप छोड़ के जा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स यू नो ही हैज टू बी ड्यूली क्वालिफाइड एंड ही हैज टू फॉलो द एथिक्स, ताकि ऐसा काम कोई ना हो कि जहां पर अपनी रेपुटेशन हो या खराब हो। फेलो प्रैक्टिशनर को आप कोई भी सर्विस अपनी देते हैं तो आप विदाउट एनी फाइनेंशियल कंसिडरेशन उसको विदाउट चार्जिंग एनी फीस यू विल डू इट। बट इन केस यू आर rendering such service from a distance, then of course reimbursement should be for traveling and other incidental expenses. And in case of emergency, when you are called for any emergency to visit the patient, तो फिर जबकि आप इमरजेंसी की पीरियड अगर खत्म हो गया, कवर हो गई इमरजेंसी, देन द केस हैज टू बी हैंडेड ओवर बैक टू द मेन फिजिशियन। अगर आप रेजिडेंस के ऊपर कोई बुलाते हैं आपको, देन ये इज नॉट इंक्वायर कि आप किसी और मेडिकल ट्रीटमेंट के में होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के ट्रीटमेंट में है या नहीं है, उस केस में जरूरत नहीं है पता करने की। बट अगर कोई फेलो प्रैक्टिशनर के रिक्वेस्ट पर अगर आप जाते हैं
तो आप उसको, अपनी ड्यूटी है कि आप उसको लेटर में अपनी ओपिनियन देते हुए उसको उस फिजिशियन को आप गाइड करिए कि ये तुम्हारे हिसाब से, अपने हिसाब से ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऑब्स्टेट्रिक केस के अंदर है कि अगर आपके पेशेंट है देन यू कैन रिफ्यूज ऑब्स्टेट्रिक केस में। और अगर अगर अनटिल आप किसी सिमिलर सीरियस केस में अगर इन्वॉल्व हैं तो फिर आप किसी और को अपनी जगह डिप्यूट कर सकते हैं। और बाकी ऑफिशियल पोजीशन के अंदर है तो आपको बताना पड़ता है कि रिपोर्ट है, इलनेस अपॉन इंजरी है, ही और शी शैल कम्युनिकेट टू द प्रैक्टिशनर। In consultation should be encouraged. Serious illness में, especially in doubtful or difficult conditions, it's always better to take the advice of the other competent persons. पॉइजनिंग वगैरह है, पॉइजनिंग के बारे में डॉक्टर निरुपमा जी थोड़ा सा मैं आपको ये परमिशन चाहूँगा आपकी। मेडिकल पॉइजनिंग जहाँ पर सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग, मेरे टीचर थे डॉक्टर बलराज भटनागर, उन जब वो पढ़ते थे डीएमएस के रहे थे, तो उनके एक कोलीग था, उसके ब्रदर यहाँ का केस था। क्लिनिक के ऊपर कुछ बंदे आते हैं बुलाने के लिए कि साहब डॉक्टर साहब चलिए कि केस जो है वो काफ़ी खराब है, उसको देख के आके आप चेक कर लीजिएगा। एंड ऑब्वियसली अर्जेंसी थी तो चले गए देने के लिए। जब वहाँ पर गए तो उन्होंने घर के आसपास देखा कि बहुत से लोग इधर से उधर दीवारों पे से देख रहे थे। ही कुड सस्पेक्ट समथिंग फॉल। जब वहाँ एग्जामिन किया, पेशेंट वॉज ऑलरेडी डेड एंड he could feel that possibly it's a case of arsenic poisoning. अब वहां पर था, कलकत्ता के अंदर था कि भी आपको बगैर डेथ सर्टिफिकेट के बॉडी की क्रिमेशन अलाउड नहीं था। तो उनका अच्छा भी देखो सर्टिफिकेट बना दीजिए इसका, तो वो कहने की अच्छा ठीक है, तो क्लिनिक तो पर पैड वगैरह वहां पर है, वहां जाकर के बताऊंगा। उन्होंने अंदर पेशेंट उनको बाहर बैठाया जो थे रिलेटिव, क्योंकि देखने में हट्टे कुट्टे लग रहे थे, कुछ गड़बड़ का मामला है। पुलिस को अंदर क्लिनिक से उन्होंने फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे इस जगह पर सस्पेक्टेड केस है एंड ऑफ कोर्स आई एम फोर्स्ड टू इशू द डेथ सर्टिफिकेट, बट जस्ट चेक इट। मैं उन्होंने फिर सर्टिफिकेट उस तरीके से बना कर ही दिया था, बट बाय द टाइम वो पहुंचे होंगे फैमिली तब तक पुलिस आ चुकी थी। तो ये यहाँ पर एक कंसल्टेशन का जो है इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है। ऐसे ही है, आपने किसी भी होम्योपैथी प्रैक्टिशनर को या अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, एलोपैथ हो कोई दिक्कत नहीं है, आयुर्वेदिक हो कोई दिक्कत नहीं है, और इन क्लोज कवर अपनी ओपिनियन वगैरह दे दीजिएगा। टेलीमेडिसिन के अभी रूल्स बने थे सीसीएच के टाइम में, ये अभी फॉर्मेशन में है। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वगैरह के अंदर कुछ आ रहा है तो ये परमिसेबल है, बट डिटेल्स इसके बारे में अभी फॉर्म होनी है। अब यहाँ पर एक बात और भी है कि कोई प्रोफेशन जहाँ पर कंसल्टेशन होती है तो कोई इनसिंसियरिटी या राइवलरी या कोई एनवी का कोई रोल नहीं है। कोई भी अब कम से कम अगर जहाँ पर आप किसी के और पेशेंट के बारे में ट्रीटमेंट से अगर आप सेटिस्फाइड अगर नहीं, आपको लगता है कुछ और होना चाहिए, तो पेशेंट की प्रेजेंस में या उसके रिलेटिव्स की प्रेजेंस में कोई काउंटर ओपिनियन ऐसा नहीं दीजिएगा। वो उन डॉक्टर से बात करके उन्हीं को बता दीजिए उनको सेपरेट, ताकि वो खुद वहाँ पर ही अपने आप फिर जैसे उनका पेशेंट का या रिलेटिव्स का हो विचार बने, उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। ये जो डिफरेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी डाइवर्ज अननेसेसरीली। इन्फॉर्म कंसेंट, ये इंपॉर्टेंट है आईपीडी के केसेस के अंदर। हाँ, लेकिन जब है तो उसमें जहाँ कोई अगर इमरजेंसी में डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वगैरह का डाउट होता है तो वहां पर तो कंसेंट ली जाएगी। अनटिल अनलेस कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि इतना भी टाइम नहीं है कि जब पेशेंट की लाइफ का रिस्क हो, तो फिर आप इवन विदाउट ओपिनियन पैरा कंसेंट वन कैन डू इट। अदरवाइज आईपीडी केसेस में कंसल्ट जो इन्फॉर्म कंसेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट आफ्टर सब्सिक्वेंट वेरिएशन जैसे भी होगा तो सब कुछ चेंज करना होता है तो भी आपको
रीजंस क्या है वेरिएशंस में, नेक्स्ट कंसल्टेशन में वो आपको बताना आपका फर्ज है और उसको फॉलो करना। कंसल्टेंट को आप किसी को रेफर करते करते हैं तो कंसल्टेंट का काम ये कि आपको आपको रिवर्ट बैक कर देंगे। कंसल्टेंट जो है वो केस के चार्ज को नहीं लेगा, सिर्फ अपने आप अपने केस बना के नहीं लेंगे। पब्लिक की तरफ, क्योंकि बेसिकली देखिए वी पीपल बिलोंग टू द हेल्थ सेक्टर, तो जो जो अदर रेगुलेशंस हैं, ड्रग्स है, पॉइजन है, फार्मेसी है, सैनिटेशन सैनिटरी लॉज वगैरह है, या जैसे कोविड के दौरान में देखा कि बहुत से रेगुलेशंस थे, इवन क्वारंटाइन से कंसर्निंग है, तो वो सबको फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। ये हमारी ड्यूटी है कि पब्लिक को हम गाइड भी करते रहें इसके लिए। कंट्रवेंशन में मिसकंडक्ट के अंदर आता है वेरियस। तो पीछे आपने मैंने पूछा था कुछ के बारे में, तो मैंने कहा था कि ये सब फॉल्स सर्टिफिकेट है, ये है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बताता हूँ। देखिए एक केस मेरे क्लिनिक के बहुत नजदीक है और उस फैमिली का था जहाँ पे इनका कपड़े का आड़त का काम था। उनके यहाँ से मेरे को बुलाने के लिए आता है कि साहब हमारा वर्कर एक गया, वो तो गर्मी के दिन थे, और आया था कि सब ये आन करके जब दरवाजे से टकराया और गिर गया, अब कुछ बोल नहीं रहा है, उसको अब चेक कर लो आन करके। मैं जब गया चेक करने के लिए, बाय द टाइम द पर्सन वाज ऑलरेडी डेड। मैं बता दिया मैं कि इसकी डेथ हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद में फिर मेरे पास में वो जिनके यहाँ काम करता था मेरे पास में आए, कहने के डॉक्टर साहब इसका डेथ सर्टिफिकेट आप बना दीजिएगा। जब केस को देखा तो वो एक्चुअली दरवाजे का से टकराया होगा और उसके साथ में टेम्पल रीजन के अंदर एकदम से काफी गहरा जख्म था, वो क्लियरली दिखाई दे रहा था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो ऐसा है कि मैं डेथ सर्टिफिकेट बना देता हूँ, बट आप एक चीज आप देख लो कि जो इसकी जो यहाँ पर इंजरी है जिससे टकराया है वो मेरे को तो मेंशन करनी होगी। मैं मेंशन करूंगा तो उसके लिए आप एक चीज के लिए तैयार रहो कि फिर ये केस जो है वो एमएलसी का केस बनेगा, और अगर आप उससे बचना चाहते हो तो फिर बेटर ये है कि आप उसके फैमिली मेंबर्स अगर कोई भी अगर है तो उनको बता करके ऐसे ऐसे हो गया और कोई जिक्र मत करिए कैसे किसी किस्म का है, आप वहीं के वहीं संभालो तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने अगर डेथ सर्टिफिकेट दिया तो मैं तो ये चीज़ लिखूंगा उसके लिए, तो फिर आपको अभी परेशानी में आ सकते हो क्योंकि पता नहीं भी कहूँ किसी ने धक्का ही दे दिया होगा, क्या मालूम। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कब सर्टिफिकेट देना और क्या देना है कैसे देना है, मना नहीं कर सकते हो। डेथ सर्टिफिकेट वैसे दिए कहीं, कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन ये केस बताना जरूरी था कि इस केस में मेरे को, मैं डेथ सर्टिफिकेट इशू करता हूँ तो मुझे उसका रेफरेंस जरूर देना चाहिए। रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है आपको सारा कि ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो आप जो है किसी भी अनक्वालिफाइड वगैरह को पर्सन को ऐसा नहीं देंगे। और सर्टिफिकेट जो भी देंगे से बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है कि जहाँ पर कई कहते हैं सब हम जा नहीं पाया था इसकी वजह से, तो आप उसके लिए बड़ा सर्टिफिकेट में मना कर देता हूँ। कितने पुराना पेशेंट हो, क्लियरली मैं उनको मना कर देता हूँ, सॉरी दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल, आई कैन नॉट डू। बिजनेस प्रक्योर करने के लिए दलाल वगैरह इकट्ठे करें तो ये भी अलाउड नहीं है पब्लिसिटी करने के लिए। या आप पास क्वालिफिकेशन है नहीं और आप अपने आप को स्पेशलिस्ट के बारे में कहें। बहुत सारे आते हैं सब डायबिटिक स्पेशलिस्ट, विच इज रॉन्ग, शुड नॉट बी डन। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन है क्लिनिक में जहाँ कोई फैसिलिटी ना हो तो, या उसका या नेम्स का दीजिए कि जहाँ ट्रीटमेंट होता नहीं उसके बारे में एडवाइस करिएगा, वो भी परमिशन नहीं है। डॉक्टर्स का यहाँ पर एक पब्लिकेशन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ डॉक्टर रनिंग और अटेंडिंग द क्लिनिक और इंस्टीट्यूशन इन दी एडवर्टीजमेंट। अब आजकल क्या देखता हूँ मैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स का आते हैं कि अवर रेस्पिरेटरी कंडीशन टीम ऑफ डॉक्टर्स और टीम ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट, टीम ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, उन सबके फोटो वोटो भी आते हैं पेपर के अंदर। अब किस हद तक ये कंडक्ट है या मिसकंडक्ट है, एथिकल है अनएथिकल है, भाई लीव इट फॉर ईच ऑफ अस टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियन। आप किसी पेशेंट को उसके रीजन या कास्ट के बेसिस के ऊपर ट्रीटमेंट मना नहीं कर सकते हैं। इम्प्रॉपर ये मिसलीडिंग सर्टिफिकेट होगा वो भी वो परमिटेड नहीं है।
या कोई और ऐसा कंडक्ट हो जो कि अदर रेगुलेशंस में हो या मिसकंडक्ट हो बाय द स्टेट काउंसिल एनसीएच, तो वो भी परमिटेड नहीं है. दैट अगेन इज इट कम्स अंडर मिसकंडक्ट. ट्रीटिंग द पेशेंट, आप वही है, आप अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल है, दैट अगेन इज नॉट परमिटेड. होम्योपैथी की प्रैक्टिस के अलावा आप कोई और सिस्टम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही परमिटेड नहीं है. हाँ, रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है तब चलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. या कोई भी मिसकंडक्टर की लिस्ट में नहीं है तो वो भी परमिटेड नहीं है. फार्माकोविजिलेंस इज समथिंग व्हिच हैज बीन एडेड, कि आप किसी भी यानी मेडिसिनल प्रोडक्ट का अगर आप देखते हैं कि इसका बैड इफेक्ट आ रहा है, एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, आपने कोर्स में ट्रीटमेंट दिया, तो इसका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज है इनको आप इसको रिपोर्ट करिए कि ऐसे ऐसे है, ताकि फिर उसके ऊपर आप लोग फॉलो कर सके, अपना एक्शन ले सके सुटेबल. बाकी जो अपने जो उसका जैसे ड्यूरेशन वगैरह जैसे प्रिस्क्राइब्ड है, बेसिकली इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू you will prescribe the medications according to the proper clinical assessment and diagnosis. फाइनली ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये डिटेल्स में दे रखी हैं रेगुलेशंस के अंदर, तो वो डिटेल मेरे को बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. उसके प्रॉपर परफॉर्मेंस बना हुआ है कि जहाँ पर अगर आपके केस में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके अगेंस्ट किसी मिसकंडक्ट का है, तो किस तरीके से उसको दिया जाएगा, अपेंडिक्स 4 के अंदर दिया हुआ है. अब जो 4 अपेंडिक्स मैंने बताए थे, एक तो ये है कि डिक्लेरेशन नोट का अपेंडिक्स नंबर 1. नंबर 2 इज कवर्ड कि लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स जो कि आप इशू कर सकते हैं फॉर वेरियस एक्ट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से. देन मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट ये दिया हुआ है. और अंडर ये है सर्टिफिकेट जो आता है नंबर 3A रेगुलेशन 19 के अंदर है. हाँ, ये कंप्लेंट का है. अगर कोई कंप्लेंट है आपके अगेंस्ट कोई करता है, तो किस उसके क्या परफॉर्मा है, ये उसके से डील करता है. बेसिकली जनरल प्रिंसिपल में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इतने रेगुलेशंस की ये शुरुआत कहाँ से आई, क्या हुआ. अगेन आई गो बैक टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. Right from the beginning of the human civilization, healthcare has been an important issue, which used to be under the guidance of saints, religious heads, etc. But जैसे जैसे when we go to the ancient medical texts, it is Atharvaveda which gives details about the remedies for various conditions. And India, possibly the first treatise was Agnivesha Charak Samhita, which was around 7th century BC, and then for surgery it was Sushruta Samhita. This was between 200 and 300 AD. तो ये मेडिकल सिस्टम को गवर्न करने के लिए रेगुलेशंस हैं. जो अब जो रेगुलेशन जो कि हमारे को अडॉप्ट करने हो रहे हैं, ये हैं, दे आर अंडर द देयर डेरिवेटिव्स ऑफ जेनेवा डिक्लेरेशन व्हिच वाज अडॉप्टेड बाय सेकंड जनरल असेंबली ऑफ वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड. दिस वाज इन सितंबर 1948. And the Code of Medical Ethics, this was adopted by the Third General Assembly of this association in October 1949. So these were the backgrounds. I must acknowledge the sources. डॉक्टर के जी सक्सेना, इनकी बुक है स्ट्रगल फॉर होम्योपैथी इन इंडिया, ये 1992 का पब्लिकेशन है. देन गजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसके अंदर रेगुलेशन दिए हुए हैं ये. देन मोदी, ऑफ कोर्स. जब मैंने शुरू में जब किताब देखी, तो आज तो मेरे पास में देखा तो 25th एडिशन जो है वो बिल्कुल इट्स ए कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया. या फिर ये जो मैंने नोटिफिकेशन का जिक्र किया वो है. एंड विद दैट आई थैंक ऑल ऑफ यू. It's a patient listening. I have taken more time as I had anticipated. I'm very sorry for that, but for any No, discussion. no, sir, but it was very important topic. So nice of you. So nice of you. There is only one question. What about Facebook and this people advertisement they do on Facebook?
Now, I have already mentioned about that, but I have used the word social media. So that I have already mentioned. I think Dr. Daryani ji had raised his hand. Huh. Ah, He wants to speak for 5 minutes. mhm. What should we do? Hmm? Because it's already 10:10. Is he there? He had raised his hand, I think. If he wants to ask any question, he can write in chat box. Mhm. Dr. Daryani, if you have any question, you can write down because we have already crossed our time limit. इसमें लिखा है two participants raised hand. This is what I'm finding. अच्छा हाँ इसमें even doctors make website. Is it ethical? Is it Website. ethical? देखिए वेबसाइट बनाएंगे तो वहां पर उसको आपको जो है ना आई थिंक बेस्ट थिंग वुड बी कि यू हैव टू टेक ए लीगल ओपिनियन. क्या चीज आप उसमें दे सकते हैं क्या नहीं. क्या होता है कि कई बार वो जो वेबसाइट बनती है तो क्लिनिक्स के नाम से बनती है. उसके अंदर फिर वो डॉक्टर से यहाँ पर ये डॉक्टर है हमारे पास ट्रीटमेंट में या ये ऑल दैट. आई एट द मोमेंट आई थिंक इट बेटर थिंग इज के वेबसाइट जो है जो कि एकदम पब्लिसिटी करती है वो आई पर्सनली फील इट इज अनएथिकल. बट दैट इज माई इंडिविजुअल ओपिनियन. डॉक्टर दरियानी का उसमें लिखा है डायरेक्ट मैसेज. आई डोंट नो वेदर. But if any question is there, I've written, let them write in chat box. So Okay. if anything, we will take that. Because we cannot give access right now. Mhm. So basically, sir, very good feedback. People have liked this lecture and there are no more questions. Thank you, sir. So we Such can a end. unique topic, such a privilege to have such a topic. I hope our colleagues they will not ignore this subject. Yeah, My wishes. you should teach us often. Try my best. Yes, sir. That is your request has come. Okay. Okay. So, sir, there are no more questions now. So we'll stop here. Okay. So thank you, sir, for such a wonderful lecture and a very good insight for all homeopaths. Because so many new things we learned from today's topic, especially our responsibilities. And thank you, friends, for with us. We'll come back with the new webinar again next month. So thank you. So, Good night. Good night. Good night. Good night, sir. Good night.